الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن داود بن صالح ابن دینار عن عمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت حرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة رضي الله تعالى عنها من صلاتها أكلت من حيث أكلت الحرة فقالت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بفضلها رواه أبو داود. حضرت داود ابن صالح ابن دینار یہ اپنی والدہ محترمہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے میری مالکن نے، جن کی میں غلام تھی یعنی کنیز تھی، انہوں نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا ہریسہ لے کر، یعنی ہریسہ بنایا تھا، انہوں نے پکایا تھا گھر میں، تو وہ ایک برتن میں اس کو بھر کے انہوں نے مجھے بھیجا، جاؤ یہ ہدیہ ہے لے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. میں وہاں پہنچی، جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں بالکل سامنے سے ادھر سے گزری، جو ہاں وہ قریب میں نماز پڑھ رہی تھی ادھر سے، تو میرے ہاتھ میں وہ برتن تھا، اب میں برتن لے کر کھڑی ہو گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ہی مجھے اشارہ کر لیا. اب اشارہ کیسے کر لیا؟ یا تو سر مبارک سے اشارہ کر لیا ایسے، یا یہ کہ دست مبارک سے یوں اشارہ کر لیا، یعنی بیٹھ جاؤ یا اس کو رکھ لو. اب میں سمجھ گئی تو میں نے اس کو ایک طاق پہ رکھ لیا، ہریسہ کو، اس برتن کو، اور خود آ کے میں ادھر کو بیٹھ گئی تاکہ پھر میں ان سب عرض کر لوں حضرت یہ ہدیہ ہے وہ یہ سب. تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئی، ابھی آپ نماز ہی پڑھ رہی تھی، اتنے میں ایک بلی آئی، جلدی سے اس نے اس میں منہ ڈالا اور تھوڑا بہت کیا لیا اور چلی گئی بلی. وہ بلی چلی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی اور مجھ سے کچھ بات چیت بھی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے وہ جو جس برتن میں رکھا ہوا تھا، آپ نے آ کے اس میں سے وہ ہریسہ کھا لیا. حالانکہ آپ نے بھی دیکھا تھا نماز کے اندر ہی بالکل سامنے رکھا ہوا تھا وہ پلیٹ، وہ بلی آ گئی اور اس نے اس میں منہ ڈال کے اس کھا کے چلی گئی. تو پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ناپاک یعنی جو میں نے کھا لیا، اس نے منہ ڈالا تھا اس میں، یہ ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی بلی کا جوٹھا، کیونکہ یہ آپ کے پاس چکر لگانے والی ہے یہ بلی. اور میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضؤ بفضلھا کہ وہ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تھے. یہ روایت ہے. اس سے پہلے ایک روایت آئی گئی، وہ اس کی روایت وہ فرماتی تھی حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کی یہ بہو تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی بہو تھی. کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے ان کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دیا برتن میں، اتنے میں ایک بلی آئی، وہ پینا اس نے شروع کر دیا. تو حضرت نے اس برتن کو تھوڑا سا جھکا لیا ایسے تاکہ وہ بلی اچھی طرح سے پانی پی لے. تو انہوں نے پانی پی لیا اور آپ پھر وضو بنانے لگے اور میری طرف دیکھنے لگے. میں غور سے دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ یعنی آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ بلی نے بھی پانی پی لیا اسی برتن سے اور اب میں اسی سے وضو بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں، یعنی مجھے تعجب ہے کہ بلی پانی پی لے اور آپ وضو بنا لیں اس سے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی جو ہے ناپاک نہیں، اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والی ہے. انہا من الطوافین،
औ तवाफ़ात, ये फरमाया। अब क्या मतलब है इसका, और ये दो रिवायतें यहाँ जमा हो गई। असल तो जो ये बिल्ली है ये है दरिंदा, और ये हदीस पाक में है, फरमाया अस्सिन्नूरु सबउन, कि बिल्ली भी दरिंदा है। दरिंदा कहते हैं उसको जो दांतों से चीर फाड़ करके खा ले, जैसे गोश्त खाते हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो कुत्ता भी ऐसा ही करता है, बिल्ली भी ऐसी करती है, रीछ भी ऐसा ही करता है, और दूसरे जो जंगली जानवर वो भी ऐसे करते हैं। तो असूल के एतबार से एक ही हुक्म सबका होना चाहिए। जो रीछ का हुक्म है, जो शेर का हुक्म है, जो तेंदुए का हुक्म है, जो उसका कुत्ते का हुक्म है, वही हुक्म तो होना चाहिए किसका, बिल्ली का भी होगा। कि हलाल तो है ही नहीं, कि कोई बकरी तो है नहीं, वो तो बिल्ली है, सब जानते हैं। तो उसकी इल्लत अल्लाह के नबी से फरमाया कि असल तो यह है उन्हीं जानवरों के साथ, लेकिन हुक्म में इसको खारिज कर दिया शरीयत ने दफ़े हरज के लिए। दफ़े हरज का मतलब यह है कि अगर इसका हुक्म वही रख दिया जाए जो कुत्ते का है, जो दूसरे जंगली जानवरों का है, तो मेरी उम्मत को परेशानी हो जाएगी। मेरी उम्मत को क्यों परेशानी हो जाएगी? इसलिए कि कुत्ते से बचना तो आसान है, लेकिन बिल्ली से बचना मुश्किल है। बिल्ली का मामला तो यह है, आप दरवाजे बंद भी कर लीजिए, फिर समझ में नहीं आता ये बिल्ली आई कहाँ से। तो कभी वो छत से आ जाती है, कभी कहाँ से आती है, कभी खिड़की से आ जाती है, तो तरह तरह, और घरों में भी रहती है। और बिल्कुल आप खाना खा रहे, दस्तरखान पर तो फ़ौरन पहुँच गई और देख रही है सामने बैठ के। तो आपने फरमाया कि ये बिल्लियाँ जो है आपके ऊपर आने जाने वाली है, चक्कर लगाने वाली हैं, मतलब इससे बचना मुश्किल है। इससे बचना, जब इससे बचना मुश्किल है तो ज़रूर ये किसी न किसी बर्तन में तो मुँह डाल देगी। कभी पानी का बर्तन होगा, कभी और कोई रोटी का टुकड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो ये करेगी। जाहिर सी बात है, जब घर में ही रहती है तो खाने की तलाश उसको रहेगी। आज भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि है ब्राइड से तांग गई दलील तुम आता सच्चवन दो मिस अड़सर खंड था अलग पानस चाहिए तो है अताज वन क्या करो। अब जाहिर सी बात है, कुत्ते के बारे में किसी ने ये नहीं कहा कुत्ते ने तंग कर लिया है कि वो अंदर आके दूध पीता है। कुत्ते के बारे में तो ये तो कह सकते हैं यम साड़ की पाक न क्या तिमोश रूट सोन, वो तो कह सकते हैं। लेकिन किसी की शिकायत आज तक ये नहीं आई कि जनाब हमने रोटियां अंदर रखी हुई थी, ये कुत्ता बार बार आता है, ऐसा तो है नहीं। अगर दरवाज़ा खुला भी होगा तो कुत्ता हिम्मत ही नहीं करेगा अंदर आने की। और बिल्ली तो आप देखेंगे वो तो आती रहती है, और ख़ास तौर से जो वो पालतू किस्म की बिल्लियाँ होती हैं, सीबरेवाड़ी में सोनंज है, वो तो आके जाएगी, वो तो वहाँ किचन में ही बैठती है। और ख़ास तौर से वो चूल्हे के पास आके सर्दियों में बस अपने आप को गर्म करती रहती है, और बहुत ही इस तरीके से सामने बैठती है कि आदमी का दिल बिल्कुल नरम हो जाता है कि हम खुद तो बाद में खा ले, पहले इसको कुछ दे दे। तो चूँकि शरीयत ने फरमाया ये बिल्ली आती रहती है और चक्कर लगाती रहती है, इसलिए उसके हुक्म में शरीयत ने तखफीफ रख दी। वो तखफीफ क्या है? वो तखफीफ ये है कि इसका जूता नापाक नहीं है जैसे कुत्ते का। अब फिर क्या है इसके जूते में कराहत है। क्या है कराहत? का मतलब यह है कि अगर आपके पास दूसरा पानी है, इस पानी को फेंक दो, दूसरा पानी इस्तेमाल कर लो। लेकिन बिलफर्ज अगर आपके पास पानी है ही नहीं, बस यही एक ही बाल्टी पानी रखी हुई थी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शरीयत का हुक्म ये किसी एक खास इलाके के लिए नहीं होता, ये पूरे आलम के लिए है। अब बहुत सारे इलाके हैं पानी की इतनी बहुतात है, वहाँ ये मसला ही नहीं है, वहाँ तो नल चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं उनको पानी लाना पड़ता है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और कहाँ कहाँ से। बाज़ जगह में तो वो पानी के टैंकर आते हैं और गांव वाले सब इंतज़ार में होते हैं, और लाइन लगी हुई है, जैसे मिट्टी का तेल तकसीम हो रहा हो, इस तरह से लाइन लगाते हैं अपने बर्तन ले लेकर। तो जाहिर सी बात है वो एक बर्तन लेकर एक खातून एक मर्द घर पहुंचा और रख लिया। अभी वो कोई काम ही कर रहा था, इधर इतने में बिल्ली आ गई और उसने उसमें मुँह डाल लिया और थोड़ा पी लिया। अब वो कहेगा हाय अफसोस की बात, बड़ी मेहनत के साथ में ये लाया था, अब इसको क्या कर लूँगा। तो शरीयत ने फरमाया घबराओ मत, घबराओ, हमने इसके हुक्म में तखफीफ कर दी है, इसके हुक्म में कुछ आसानी कर दी है, सहूलत कर दी है, तुम घबराओ मत। तुम्हारे पास दूसरा पानी नहीं है, हजरत मेरे पास दूसरा पानी नहीं है, ठीक है, आपको वज़ू बनाना है, आपको गुस्ल करना है, आपको कपड़े धोने हैं, जी कर लो, कोई हर्ज नहीं, तुम्हारा वज़ू भी हो जाएगा, तुम्हारा गुस्ल भी हो जाएगा। तो ये बिल्ली के बारे में शरीयत ने ये आसानी रख दी है। तो ये फरमाया कि बिल्ली जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का जो बचा हुआ पानी था उससे वज़ू फरमाया, उससे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया है तो जाहिर सी बात है इससे बढ़कर कौन सी दलील हो सकती है हमारे लिए, वही सबसे बड़ी दलील है।
इस तरह से गोया कि बिल्ली के जूठे के बारे में ये रियायत दी गई। हाँ, अगर ये मालूम है कि बिल्ली का मुंह जो है वो नापाक है, आप देख रहे थे कि वो बाहर जो चूहा खा रही थी या और उसी गंदगी में उसने मुंह डाला था, आके उसने जबान डाल दी किस में, बर्तन के अंदर, आप तो पानी तो नापाक हो जाएगा, बिल्कुल नापाक हो जाएगा। ये सिर्फ बिल्ली का हुक्म नहीं है, ये तो बकरी का भी हुक्म है। बकरी, आपने देखा कि बकरी जो है बाहर कुछ गंदगी खा रही है और आके उसने मुंह डाल दिया किस में, बर्तन में डाल दिया, तो बर्तन सर नापाक हो जाएगा। वो दरअसल उसके मुंह की वजह से नापाक नहीं हुआ, वो उस गंदगी की वजह से हुआ जो उसके मुंह में लगी हुई है। ऐसे ही मसलन बत्तख ने पानी पी लिया और मुर्गी ने पानी पी लिया, आपने बर्तन में पानी रखा था, मुर्गी आ गई और उसमें से पी के, तो बिल्कुल पानी पाक है। लेकिन अगर उसके चोंच में गंदगी लगी हुई है तो पानी नापाक हो जाएगा। दरअसल वो पानी नापाक क्यों हुआ, वो गंदगी की वजह से। इसलिए फरमाया जो बच्चे हाथ डालते हैं पानी की बाल्टीन वगैरह में, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, बच्चों के हाथ अक्सर बेशतर गंदे ही रहते हैं, कभी पेशाब कर लेंगे, कभी कोई चीज़ नबीन से उठा लेंगे, तो इनको मालूम ही नहीं है। तो इस तरह से बिल्ली के बारे में ये रुख्सत दे दी गई। ये तो पहली रिवायत थी पानी के बारे में। ये दूसरी रिवायत जो है ये वो खाने की चीज़ के बारे में, वो तो सिर्फ किसके लिए था, वज़ू बनाने के बारे में, लेकिन ये वाली रिवायत तो खाने के बारे में। अब इसमें कई एक मसाइल है। एक तो यह है कि हदिया बेच देना चाहिए एक दूसरे को, और पका पकाया भी बेच सकते हैं, है ना, वैसे कच्चा भी बेच सकते हैं। तो अज़वाज मुतहरात के पास लोग हदाया बेचते थे। और फिर यह भी मालूम हुआ कि जो खाली औकात अज़वाज मुतहरात के होते थे वो इबादत में गुजरते थे। अब देखिए परमादी में दाखिल हो तो नमाज़ पढ़ रही थी, हालांकि कोई फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं था, आप नवाफिल और इस तरह से उसकी कसरत करते थे। और बहुत सारी रिवायतें ऐसे हैं कि वो एक सहाबिया कहती है, मैं वहाँ दाखिल हुई तो मैंने देखा कि आप जो है हज़रत मैमूना वो अल्लाह अल्लाह कर रही है। हज़रत सफ़िया के पास में गई, मैंने देखा कि वो जो है वो अल्लाह अल्लाह करे, दुआ में मशगूल है और ज़िक्र में मशगूल है। तो इस तरह से खाली औकात के अंदर अज़वाज मुतहरात इबादत करती रहती थी। और ये अल्लाह का हुक्म भी था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा कर लो, और जो आयतें तुम्हारे पढ़ी जाती हैं कुरान पाक, उसकी तिलावत भी कर लिया करो। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने इशारा कर दिया, इन्हें रख लो। अब वो इशारा कैसे किया, रावी ने यहाँ ये बयान नहीं किया कि आपने सर मुबारक से इशारा किया, ऐसे फरमाया कि रख लो हैं, या यह है कि हाथ से कहा। तो इससे अमल कलील कहते हैं। क्या अमल कलील, बवक्त ज़रूरत उसकी इजाज़त है, जिसे हाथ से कुछ इशारा करना पड़े, हाथ उठाना पड़ ले अपनी जगह से। जैसे मिसाल के तौर पर खुजली कहीं आई, आपने यूं यूं कर लिया फिर हाथ रख लिया, यह अमल कलील है। इसी तरह से मच्छर आपके कान के ऊपर बैठ गया और आपने उसको हटाना चाहा तो यूं कर लिया और फिर हाथ रख लिया, यह अमल कलील कहलाता है। आप नमाज के अंदर आपकी टोपी नीचे गिर गई, आपने एक हाथ से उठा के उसको सर के ऊपर रख लिया, यह अमल कलील है। या इसी तरह से मोबाइल की घंटी आ गई और आप नमाज पढ़ रहे थे, तो आपने एक हाथ से दायां हाथ से निकाल के जेब में हाथ डाल के उसका बटन जो है आपने दबा लिया और उसको क्या कर लिया, बंद कर लिया। ये सारे अमल कलील कहलाते हैं। अमल कलील जो है वो इसकी इजाज़त है। बिला ज़रूरत करेंगे तो मकरूह है, बिला ज़रूरत करेंगे तो हाँ। अमल कसीर उसको कहते हैं जिसमें दोनों हाथ इस्तेमाल हो जाए। मसलन आपने दोनों हाथ से खुजलना शुरू कर दिया, आपने दोनों हाथ से नमाज के अंदर जो है वो टोपी को ठीक कर लिया, या इसी तरह से दोनों हाथ से आपने मोबाइल को निकाल के यूं करने और बटन दबा रहे हैं, तो चुमले अमल कसीर है। अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है, अमल कलील से नमाज फासिद नहीं हो जाती है। ज़रूरत के वक्त पर उसकी इजाज़त है, और बिला ज़रूरत मकरूह है। बिला ज़रूरत बिला ज़रूरत का मतलब क्या है, आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर आप दाढ़ी के साथ खेल रहे हैं, और नमाज भी हो रही है और आप दाढ़ी को घुमा रहे हैं, यूँ घुमा रहे हैं, यूँ घुमा रहे हैं। या इसी तरह से बाज़ लोग जो है नमाज के अंदर जो है वो अपनी नाक से जो है वो मैल कुचैल निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बेअदबी भी है कि अल्लाह तबारक ताला के सामने हैं और आप नाक से मैल कुचैल निकाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी ऑफिसर के सामने हों और वो आपकी तरफ देख रहा हो, आप उससे कुछ कह रहे हो, तो क्या आप उसके सामने अपनी नाक को साफ कर लेंगे? हिम्मत ही नहीं होगी। तो इस तरह से बिला ज़रूरत के अगर कोई अमल कर लेगा अमल कलील, तो ये मकरूह है, इससे नमाज में सवाब कम हो जाता है। बहरहाल, और अगर बार बार कर ले
تو عمل قلیل بار بار کر لے بلا ضرورت تو نماز کے فساد کا حکم بعض فقہاء نے لگا دیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا اشارہ کر لیا رکھ لو، تو ہم نے رکھ لیا، اس کے بعد وہ بلی آئی، اس میں نے تھوڑا سا کھا لیا، تو باقی تو بچا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کھا لیا۔ اب اگر گوشت رکھا ہوا ہے اور بلی آئی، ایک بوٹی لے کر وہ بھاگ گئی بلی، باقی تو آپ کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ ایسے اگر کوئی لکوڈ چیز رکھی ہوئی ہے، سیال چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں اگر اس نے وہ منہ ڈال دیا، زبان ڈال دی اس میں، اس کا حکم بھی یہی ہے، اگر آپ کے پاس اور پانی ہے تو اس پانی کو پھینک دیجئے اور دوسرا پانی استعمال کر لیجیے۔ اور اگر یہ دودھ ہے، کیا ہے، کھانے کی چیز ہے، اس میں بھی یہی ہے، اگر آپ کے پاس اور دودھ ہے، یہ آپ انہی کو پلاؤ، کس کو، بلی کے رہے کہ آپ یہ بھی تم ہی پی لو، یہ پاؤ تو چوئی سوئی بولے سنو بدل، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی استعمال کرنا کوئی واجب و ضروری بھی نہیں صاحب، آپ کو تو یہی پانی استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو تو یہی دودھ استعمال کرنا پڑے گا، بالکل نہیں، بلکہ آپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بھی استعمال کریں گے تو کوئی حرام اور ناپاک نہیں مانا جائے گا، کراہت تو مانی جائے گی، اور لیکن چونکہ ثابت ہے اس لیے گناہ گار بھی آدمی بالکل نہیں ہوگا، ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس نے اس میں سے کچھ روٹی کا کچھ ٹکڑا کھا لیا ہے، باقی رکھ لیا ہے، تو اس کا یہی حکم ہے کہ بھائی تھوڑا سا اس کو خورش لو، باقی کھا لو۔ اور چوہے کا بھی یہی حکم ہے، کس کا، چوہا آ گیا اور اس نے کچھ کھا لیا اس میں سے، مثلا چوہا آ گیا اور سیب کا ایک حصہ کھا لیا اس نے، تو آپ سیب پھینک بھی سکتے ہیں، اور اگر کھانا چاہیں تو آپ اس حصے کو کیا کر لیں، کاٹ لیں اوپر سے، اور باقی کو دھو لے، دھو کے کھا لے، تو اس میں اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اس نے روٹی کا ایک کنارہ کھا لیا ہے، آپ اس کنارے کو یوں کاٹ کے اس کو پھینک دیجئے، اور جو باقی ادھر کو بچا ہوا ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال شریعت نے ان چیزوں کے اندر آسانی رکھ دی ہے، اس میں ان کا آتا ہے جو ہے سانپ کا جوٹھا، اور اس طرح بلی کا جوٹھا اور چوہے کا جوٹھا، یہ ہے، تو یہ روایت آئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بھی سنا لی اسی کو، جو وہاں وہ خاتون گئی تھی، اور کیا فرمایا، انہا لیست بنجس، کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، کس طرح سے، جس طرح سے کتے کا جوٹا ناپاک ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو یہ حلال ہے کھانا، کھانا حلال نہیں ہے، بلی تو حرام ہے کھانا، لیکن اس کا جو بچا ہوا ہے، جو جھوٹا ہے، اس کے بارے میں فرمایا مثل کتے کے ناپاک نہیں ہے، کتے کا حکم آگے آ رہا ہے۔ انہا من الطوافین علیکم، ساتھ میں یہ بھی بتا دیے کیوں ناپاک نہیں ہے، کیوں نجس نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ تو چکر لگانے والیاں ہیں تمہارے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا، میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے بلی کے بچے ہوئے جو پانی بچا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا پی لیا تھا اس نے، تو اس کے پانی سے میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو فرمایا۔ تو یہ روایت آ گئی اس میں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انا اتوضأ بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع كلها، یعنی ان سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گدھے کا جوٹھا ہے، گدھے نے جس میں پانی پی لیا ہو، تو کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ درندہ جو بھی ہو جس نے اس پانی کو جوٹھا کر دیا ہو اس سے وضو بنا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درندے کا بھی ہے، اس میں تو سارے جانور آ گئے۔ اصل میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا تالابوں کے بارے میں، آگے روایت آئے گی، جو بڑے تالاب ہوتے ہیں اس میں کتے بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور گدھے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور جنگل کے جانور بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ تو جب پانی بہت ہو، بڑا تالاب ہو، اس میں وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ورنہ اگر آپ نے یہاں پانی رکھا ہوا ہے اور گدھا آ گیا، اس نے اس میں سے پانی پی لیا بالٹی میں سے، تو آپ اس کے اندر، چونکہ دونوں روایتیں ہیں اس طرح سے ناپاک ہونے پاک ہونے کی بھی، اس لیے اس سے اجازت نہیں دی جاتی وضو کرنے کی۔ اور اگر کہیں صرف وہی پانی ہو اور کچھ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ وضو بھی کر لو، لیکن تیمم بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ اس سے دلائل دونوں طرف کے ہیں اس میں۔ تو بہرحال روایت آگے آ ہی رہی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، کیا روایت فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصعۃ فیہا اثر العجین، رواہ النسائی و ابن ماجہ۔ یہ ام ہانی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
ये हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजह की ये उनकी हमशीरा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन उम्मे हानी। तो ये फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद और ज़ौजे मोहतरम हज़रत मैमूना ने एक बड़े टब से गुस्ल फरमाया और उसमें आटे के कुछ असरात थे। किसके? आटे के कुछ असरात उसमें लगे हुए थे, यानी आपने उसे गुस्ल फरमाया। सवाल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस बर्तन में पानी रखा हुआ था उस बर्तन के अंदर आटे के असरात थे। मसलन आटा भी उसी में गूंदा हुआ था, फिर आटा तो निकाला गया था लेकिन किनारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वो लग चुका था, तो हल्के फुल्के असरात पानी में भी आए थे, आपने उससे भी गुस्ल फरमा लिया। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई पाक चीज़ हो और वो पानी के साथ मिली हुई हो, उससे वज़ू करना, गुस्ल करना उसकी इजाज़त है, बशर्ते कि इतनी ज़्यादा मिकदार में न वो चीज़ मिली हुई हो कि वो पानी गाढ़ा हो गया हो। क्या हो गया? गाढ़ा, या उसका रंग चेंज हो गया हो। तो जाहिर सी बात है, जब रंग भी बदल जाएगा सारा और पानी गाढ़ा हो जाएगा तो पाक चीज़ मिलने के बावजूद भी उससे फिर वज़ू करना जायज़ नहीं। खाने पीने का मसला अलग है और वज़ू बनाने का मसला अलग है। दूध पाक है ना, हलाल है, आप दूध पी सकते हैं लेकिन दूध से वज़ू नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। ऐसे मिट्टी का तेल आपके हाथ में लग गया तो ये तो नहीं कहा जाएगा ये नापाक है पेशाब की तरह, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप मिट्टी के तेल से वज़ू बनाना चाहें तो उसकी इजाज़त नहीं। ऐसे ही पानी के अंदर आपने दूध डाल दिया, अब पानी का रंग चेंज हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल लग रहा है कि ये तो पतला पतला सा दूध ही लगता है। आप उसे वो पीना चाहें तो पी सकते हैं कि वो पानी भी पाक है और दूध भी पाक है, हलाल है, तय्यब है। लेकिन आप वज़ू बनाना चाहें उसका मसला है, क्योंकि वज़ू और गुस्ल वगैरह के लिए पानी ही ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों से वज़ू और गुस्ल नहीं होता। लेकिन अगर हल्के फुल्के असरात उसमें आ गए हैं तो क्या हुक्म है? कहते हैं फिर भी पानी पानी ही रहेगा। कैसे? जैसे मुर्दों को गुस्ल देते हैं तो उसमें वो पत्ते डाले जाते हैं, ताचित्रावन बबरी काठ का चित्रावन जी बबरी काठ चित्रावन सज ब्योल चित्रावन यम चीज चित्रावन। हालांकि तम साथ वुचान तक तमिक शीर हूँ द्रामुत, मगर अमे बावजूद कह वन कि है यह सा अम सा यमिस में गुस्ल करने कहीं। हालांकि हल्का फुल्का तो रंग उसमें आ ही जाता है लेकिन पानी फिर भी पानी ही रहता है। तो इस तरह से वो मसनून है, सुन्नत है, उससे मैल कुचैल दूर हो जाता है। उसके कायम मुकाम आज साबुन है कि साफ पानी है और साबुन लगा लिया तो चल जाएगा। इससे मालूम हुआ कि पानी का रंग अगर हल्का फुल्का मुतगैर हो चुका है और अगर कोई पाक चीज़ मिली हुई है तो उससे वज़ू भी जायज़ है और गुस्ल भी जायज़ है। इसी तरह से बाज़ मरतबा जो है वो जिस बर्तन में सालन पकाते हैं घर वाले, उसी बर्तन में वज़ू के लिए पानी भी रख लिया। अब जब आप वज़ू बना रहे हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल नमकीन नमकीन सा लग रहा है, ताचू मरचांगन टी-शर्ट बासन नुनबाज बासन का आबस, तो इससे भी कोई फ़र्क उसमें पड़ने वाला नहीं। अच्छा, अगर मिट्टी मिल जाए उसमें तो बहुत रुख्सत है। क्यों? इसलिए कि मिट्टी का मिलना तो अक्सर बेशतर होता ही रहता है। बारिश ज़्यादा हो गई, आप देखिए पानी कैसा होता है दरिया में, बिल्कुल वो उसका रंग बदल जाता है। उससे गुस्ल भी जायज़ है, उससे वज़ू भी जायज़ है। हाँ, पीने वाला मसला अलग है कि भाई सेहत ख़राब हो जाएगी, ये ठीक नहीं है, छान के पी लो, वो कर लो, है ना, इसको फिल्टर पहले कर लो, वो तो अलग मसला है। लेकिन जो बारिश का पानी दरियाओं में आता है और नदी नालों में आता है, बिल्कुल उसका रंग बिल्कुल उसका चेंज होता है, तब भी उसे वज़ू भी जायज़ है, गुस्ल भी, इसलिए कि वो पानी चल रहा है, रवा है। अत मज कुछ ज़्यादा परेशानी गसन हता रूद पेमुत वारिया तो आब क्या गुरुट नलकन गुरुट आब दपन एक गुरुट योत रब योत आब, तो जाहिर सी बात है उसको आप इस्तेमाल करना चाहें, इस्तेमाल करने की इजाज़त है। क्यों? वो जो उसका रंग चेंज हुआ वो कोई आटे का रंग नहीं है, दूसरी चीज़ों का, वो ज़मीन का रंग है। किसका? और उसमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि इससे बचना तो नामुमकिन है, इसलिए कि बारिशें बरस रही हैं और इस तरह से बर्फबारी हो रही है और पानी के अंदर ये मिट्टी के अज्जा साथ चले जा रहे हैं, इसे इजाज़त है। तो बहरहाल ये फरमाया कि उसमें आटे की कुछ वो आमेजिश भी थी, आटे का असर उसमें आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उससे गुस्ल फरमाया। तो ये चीज़ें आपने जानबूझकर भी फरमाई ताकि उम्मत को मसला भी मालूम हो जाए। तो इसी तरह से कभी कभी साबुन की टिक्कियाँ गिर जाती है किसमें?
पानी के बाल्टी में, रोए की बाल्टी आपके पास है, पानी की टिकिया जो आपके हाथ में थी, आप यूं यूं कर रहे थे, वो जाके किस में गिर गई और आपने फौरन अपना हाथ डाला, निकाला, तो जाहिर सी बात है वो पानी जो है उस वक्त वो जो है तो उसका रंग हल्का फुल्का सा बदल जाता है, साबनी वो न्यूज़ है ना, आप उसे गुस्ल करना चाहिए, इजाज़त है। क्यों? इसलिए कि उसकी रिक्कत यानी उसका पतलापन तो बरकरार है, सयालान के मानी उसका बहाव भी मौजूद है, तो बहाव भी मौजूद है और उसका पतलापन भी मौजूद है, हल्का फुल्का उसमें रंग ज़रा सा बदल गया और वो साबुन की टिकिया उसमें गिर गई तो उसकी इजाज़त है, उसमें उससे पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वअन यहया इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल इन्ना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खरज फी रकबिन फीहिम अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हत्ता वरदू हौज़न फ़क़ाल अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या साहिबल हौज़ हल तरिदु हौज़क सिबाउ फ़क़ाल उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या साहिबल हौज़ ला तुख़बिरना फ़इन्ना नरिदु अला सिबाई व तरिदु अलैना। क्या मतलब है इस रिवायत का? ये हज़रत यहया इब्न अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़र में निकले और उस काफ़िले में हज़रत अम्र इब्न आस भी थे। फरमाते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम एक हौज़ के पास पहुँच गए, पानी का बड़ा हौज़ था एक जगह, यानी तालाब। हौज़ का मतलब ये नहीं कि जिसके किनारे किनारे में वो संगमरमर ही लगा हुआ हो, नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं, यानी पानी का एक तालाब था, तो पानी का एक बहुत बड़ा हौज़ था। तो वहाँ एक साहबी थे जो वहाँ के रहने वाले थे, तो हज़रत अम्र इब्न आस ने उससे कहा, कहने लगे कि हौज़ वाले, सलाम कलाम के बाद, हौज़ वाले ये बताओ कि यहाँ जंगल के जानवर भी पानी पीने के लिए आते हैं आपके हौज़ पर, यानी वो शेर और भेड़िए और जो भी हों। तो उनसे पूछने लगे क्या यहाँ आते हैं जंगल के जानवर पानी पीने के लिए? अभी वो जवाब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इधर से हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया हौज़ वाले बिल्कुल ना बताना। क्या कहा? बिल्कुल ना बताना, खामोश रहो, क्योंकि हमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खामोश रहो, न ये कहो कि आते हैं और न कहो ये कहो कि नहीं आते हैं। सवाल है क्यों? कहने लगे कि फ़इन्ना नरिदु अला सिबाई व तरिदु अलैना, कहेंगे तो पानी का हौज़ है, कभी हम इस्तेमाल करेंगे, कभी जंगल के जानवर इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि पानी कलील नहीं है, कोई बाल्टी का मसला नहीं है, कोई एक टैंकी का मसला नहीं है कि भाई जनाब दरिंदे ने इसमें पानी पी लिया हो और उसने अपना मुंह इसमें डाल दिया हो, उसका लुआब पानी के साथ मिल गया हो। यह तो बहुत बड़ा तालाब है, इसलिए इस तहकीक में जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं, शक शुबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए फरमाया कि ला तुख़बिरना, हमको ख़बर ही मत दे दो, बस आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये फरमाया, ये इसलिए फरमाया कि इतने बड़े पानी के बारे में सवाल जवाब करना कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा पानी होगा तो फिर तो पूछेंगे भाई ये पानी पाक है या नापाक है, ये नदी कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर बहुत बड़ा तालाब है और लोग आ रहे हैं, वज़ू बना रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, अब इस पर इतनी तहक़ीक़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फरमाया तो ज़्यादा तहक़ीक़ और तदक़ीक़ का मिजाज नहीं बनाना चाहिए, है। मसला ज़बा करने वाले सुन हे पहुँचा था तम साथ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर किन्न सदब से न्यूनशियाज माज किन्न से क्या शीतात से, है ना, हे चौथा असल पर राय गढ़ मुस्किन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं है, हैं। या कांद्रिस दबो दबो सताज ये चीम चो सुख बनावन मशमा आसाद बिहत सदब से अगर न्यूनशी निहाज, तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा तहक़ीक़ और तदक़ीक़ करने का शरीयत ने हमको मुकल्लफ नहीं बनाया है कि खूब तहक़ीक़ करें और बाल की खाल निकालें, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों को तो जैसे शरीयत ने रखा है आसानी के लिए, वैसे आसानी के एतबार से क्या करना चाहिए, चलते रहे, ये है। इसलिए बाज़ लोग पूछते हैं कि जनाब बारिश की छींटें आ जाती हैं जब हम रास्ते में चलते हैं, शरीयत ने ये सब ठीक है, क्या है, चलते रहो जितनी भी छींटें आ गई। हाँ, अगर यकीन है किसी जगह कि यहाँ नापाकी गिरी हुई थी, वो नापाकी मुझको लग गई, तब तो मसला पूछे। लेकिन आम रास्तों में, आम हालात में ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तहक़ीक़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हज़रत ने फरमाया उससे। फिर साथ में क्या फरमाया, फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, क्या सुना, आप फरमाते थे यक़ूलु लहा मा अख़ज़त फ़ी बुतूनिहा व मा बक़िया फ़हुव लना तुहूरुन व शराबुन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहा मा अख़ज़त फ़ी बुतूनिहा, जानवरों ने अपने जो पेट में भर लिया वो तो उनका हो गया, वो तो उनका हो गया, और वमा बक़िया, और जो कुछ तालाब में पानी मौजूद है फ़हुव लना,
ये तो हमारे लिए है। तुहूरुन व शराबुन, ये पाक भी हैं और उसको पी भी सकते हैं। तुहूरुन का मतलब ये है कि अगर हम वज़ू करना चाहें, गुस्ल करना चाहें, कपड़े धोना चाहें, इसकी भी इजाज़त है, और अगर हम पीना चाहें इसकी भी इजाज़त है। तो बड़े तालाब के बारे में यही हुक्म है कि उस पानी को शरीयत ने पाक ही करार दिया। रिवायत तो पहले आ गई कि ठहरे हुए पानी में कोई पेशाब न करे, कोई गंदगी न डाले, हिफाजत